السلام علیکم۔ تاریخ کا ایک واقعہ یاد کر لیتے ہیں۔ کافی پرانا واقعہ ہے لیکن بہت دلچسپ ہے، انشاءاللہ سن کے مزہ آئے گا آپ لوگ کو۔ تو یہ حضور کے آنے کے لگ بھگ 150 سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے 400 سال بیت چکے تھے۔ عیسائیوں کے 2 طبقے بن چکے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، نعوذ باللہ، اور دوسرا وہ تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا تھا۔ لیکن عیسائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، ان کی حکومتیں زیادہ تھیں، وہ طاقت میں آ گئے تھے، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے تھے وہ دبے ہوئے تھے، انہیں چھپ کے رہنا پڑتا تھا۔ تو ایسے حالات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے 400 سال ہو گئے ہیں، حضور کو آنے کے 150-200 سال پہلے۔ تو اس زمانے میں یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا رابعہ بن نصر۔ تو یہ رابعہ بن نصر نے ایک رات خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کے وہ بہت ڈر گیا، بے چین ہو گیا، خواب میں کچھ دیکھ لیا ہوگا، پریشان ہو گیا۔ اگلی صبح وہ لوگوں کے پاس آیا اپنے دربار میں، اور اپنے جتنے بھی کاہن تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، نجومی تھے، جو بھی جانکار لوگ تھے، ان سب کو بلایا، اور ان سے کہا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب دیکھ کے میں بہت ڈرا ہوا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہوا۔ تو دربار کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنا خواب بتائیں، ہم آپ کو آپ کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا خواب کا۔ تو بادشاہ نے بولا نہیں، میں آپ کو خواب نہیں بتاؤں گا، آپ ایسے ہی بتائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ خواب ہی نہیں بتائیں گے تو ہم تعبیر کیسے بتائیں گے، آپ خواب تو بتائیں۔ تو رابعہ بن نصر نے بولا کہ اگر میں نے آپ کو اپنا خواب بتا ہی دیا تو پھر تو آپ کچھ بھی پھینک دو گے، آپ کو جو مرضی آئے کہ آپ بول دیں گے، پھر مجھے اس پہ یقین کرنا پڑے گا۔ تو بولا کہ مجھے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ خود ہی بتا دے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، وہ خود ہی بتائے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، اور پھر اس کی تعبیر بتائے، تو پھر اس شخص کی بات میں یقین کر لوں گا، ورنہ میں خواب نہیں بتانے والا۔ اب دربار کے لوگ سارے بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہم خود ہی بتا دیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ تو آخرکار بادشاہ نے اپنا خواب نہیں بتایا کسی کو۔ تو پھر لوگوں نے کہا آخری میں کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے تو یہاں پہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے، لیکن ہم 2 شخص کو جانتے ہیں، ایک کا نام ہے ستی اور ایک کا نام ہے شق، اور وہ 2 شخص کافی علم والے ہیں، ان کو کافی علم ہے، کافی جانکار لوگ ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو انہیں بلوا لیں اور ان سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس معاملے میں مدد کر دیں۔ تو بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے، ساتھی اور شق کو بلایا جائے دربار میں۔ تو ان دونوں کو بلانے کا پیغام بھیج دیا گیا۔ تو ان دونوں میں پہلے ساتھی پہنچا بادشاہ کے پاس۔ تو رابعہ بن نصر نے اسے بھی کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب دیکھ کے میں بہت پریشان ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ تو ساتھی نے کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ تو ساتھی نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اندھیرے سے ایک بھڑکتی ہوئی آگ نکلی، اور وہ آگ آ کے زمین کے ایک گڈھے میں گری، اور وہاں پر موجود جتنی بھی انسان کی ہڈیاں تھیں ان سب کو کھا گئی، ان سب کو جلا کر راکھ کر دی۔ تو رابعہ بن نصر نے بولا کہ ہاں میں نے تو خواب میں یہی دیکھا ہے، آپ صحیح ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر ستی نے کہا کہ آپ کی اس یمن کی سلطنت پہ ابیان سے لے کے جراش تک یہاں پر حبشیوں کی حکومت آ جائے گی۔ تو یہ بات سن کے
रबिया बिन नसर परेशान हो गया, बोला कि ये तो बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पे मेरी सल्तनत चली जाएगी और हबशियों की हुकूमत हो जाएगी। ये सब कब होगा? ये सब मेरे ही ज़माने में होगा, मुझे ही देखना है ये सब, या फिर मेरे बाद होने वाला है? तो सती ने कहा कि नहीं, ये आपके जाने के लगभग 60-70 साल के बाद होने वाला है, ये हबशियों की यहाँ पे हुकूमत आ जाएगी। तो फिर रबिया बिन नसर ने पूछा, तो फिर क्या हबशियों की हुकूमत हमेशा रहेगी यहाँ पे? तो उसने कहा कि नहीं, इरम बिन दू यज़ान नाम का एक बंदा आएगा यमन के शहर एडन से, और वो फिर हबशियों को यहाँ से मार भगाएगा। उनकी हुकूमत लगभग 70 साल या उससे कुछ ज़ायद चलेगी। हबशी भी 70 साल या उससे कुछ ज़्यादा हुकूमत करेंगे। उसके बाद इरम बिन दू यज़ान ये यमन के शहर एडन से आके इनका खात्मा कर देगा, इन्हें यहाँ से मार भगाएगा। नसर ने पूछा, तो फिर क्या उनकी हुकूमत रहेगी आगे हमेशा? तो बोला कि नहीं, 70 साल या उससे कुछ ज़ायद उनकी हुकूमत रहेगी, उसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बोला वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे? तो बोला कि एक पाकीज़ा पैगंबर के हाथों एक पाकीज़ा पैगंबर आएगा जिसे कि आसमानों से नसीहत मिलती होगी, उसके हाथों इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो रबिया बिन नसर ने पूछा कि ये पैगंबर कौन है? तो सती ने बताया कि ये पैगंबर गालिब एक बंदा है जो कि उस ज़माने में मौजूद था। उस नौची ज़माने के एक बंदे का नाम बताया कि गालिब बिन फिहिर बिन मालिक बिन नदर, इस बंदे की औलादों में से वो पैगंबर होगा। यहाँ की हुकूमत उनके हाथ में चली जाएगी और उसी पैगंबर के उम्मतियों के हाथों यहाँ की हुकूमत रहने वाली है, यहाँ तक कि जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो जाए। तो फिर रबिया बिन नसर ने पूछा कि दुनिया ख़त्म भी होने वाली है? तो बोला कि हाँ, जिस दिन बोला कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी तब पुराने ज़माने में आए हुए लोग और जो बाद में आने वाले लोग हैं उन दोनों को एक साथ एक जगह पर ले आया जाएगा। ये तब होगा जब दुनिया ख़त्म होगी, तब ऐसा हो जाएगा। और जो लोग नेक होंगे उन्हें उनके नेकी का बदला मिलेगा, उनके लिए वो जीत का दिन होगा, उनके लिए खुशी का दिन होगा। और जो लोग बदकार होंगे, जो बुरे लोग हैं, जो बुराई करते हैं, उनके लिए वो गम का दिन होगा। तो फिर रबिया बिन नसर ने पूछा कि क्या तुम जो भी कह रहे हो ये सच है? तो सती ने कहा कि हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि सुबह और शाम की कसम और दिन की शुरुआत की कसम कि मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ बिल्कुल सच है। तो सती ने इतना कुछ कहा रबिया बिन नसर को, फिर सती चला गया। उसके बाद फिर शेख आया बादशाह के पास। अब शेख को बादशाह ने कुछ भी बताया नहीं कि सती ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, कुछ नहीं बताया। जब शेख आया उसे बादशाह ने फिर वही बात कही कि मैंने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब देख के मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैंने क्या देखा है ख्वाब में। तो शेख ने बादशाह को कहा कि आपने ख्वाब में देखा है कि अंधेरे से एक भड़कती हुई आग आई, अंधेरे से एक भड़कती हुई आग आई और वो पहाड़ों और मैदानों के बीच में आकर गिरी, और वहाँ पर जितने भी इंसान थे, जितने भी लोग थे, उन सबको जलाकर राख कर दी, उन सबको खा गए। तो ये शेख की बात थोड़ी अलग थी सती से, लेकिन बादशाह ने कहा कि नहीं सही है, मैंने यही देखा है ख्वाब में, आप बताएं इसका मतलब क्या हुआ। तो फिर शेख ने कहा कि तमाम इंसानों की कसम आपकी इस सल्तनत पे, अबयान से लेके नजरान तक, ये भी यमन के 2 शहर हैं, अबयान से लेके नजरान तक यहाँ पर कालों की हुकूमत होगी, यहाँ पर कालों की हुकूमत हो जाएगी। और वो काले उंगली के बोटी बोटी तक के हिस्से पे आपके लोगों से आगे निकल जाएंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। तो रबिया बिन नसर ने कहा कि ये तो बहुत दुख की बात है, ये सब कुछ मुझे ही देखना है कि मुझे मेरे बाद होने वाला है। तो शेख ने कहा कि नहीं, ये आपके जाने के कुछ अरसे के बाद होगा, और उसके बाद उन हबशियों की हुकूमत के बाद भी एक आबिद इंसान होगा
वो काबिल इंसान उन हबशियों की हुकूमत को भी ख़त्म कर देगा, और उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद उस इंसान को भी ज़िल्लत और रुसवाई देखनी पड़ेगी। तो फिर बादशाह ने पूछा कि वो काबिल इंसान कौन होगा? तो उसने बताया कि धू यज़ान घराने का एक आदमी होगा, वही यहाँ से हबशियों को मार के भगा देगा, यहाँ से कालों को मार के भगा देगा। तो फिर बादशाह ने पूछा कि तो फिर क्या उसके बाद फिर धू यज़ान के जो घराने का बंदा है उसकी हुकूमत रहेगी यहाँ पर हमेशा? तो उसने कहा कि नहीं, उसके बाद यहाँ पर खुदा के पैगंबर की हुकूमत आ जाएगी, खुदा का पैगंबर आएगा और फिर उसकी हुकूमत यहाँ पर आ जाएगी, और फिर हमेशा हमेशा उसके बाद आगे उन्हीं की हुकूमत रहेगी यहाँ तक कि क़यामत का दिन नहीं आ जाए। तो फिर बादशाह ने पूछा कि यह क़यामत का दिन क्या चीज़ है? तो बोला कि क़यामत का दिन ये वही चीज़ है जिस दिन बादशाहों को उनके करम का सिला मिलेगा, जिस दिन पुराने और नए ज़माने के लोग दोनों एक साथ लाकर खड़े कर दिए जाएंगे, और जो लोग नेक लोग होंगे उनको उनकी नेकी का बदला मिलेगा, उनके लिए खुशी का दिन होगा। तो फिर राबिया बिन नसर ने कहा कि शिक, क्या तुम जो भी कह रहे हो ये सच है? तो शिक ने भी कहा कि कसम है आसमान और ज़मीन के खुदा की, और जो कुछ इस आसमान और ज़मीन के बीच में चढ़ता उतरता है, इन सब की कसम है कि मैंने जो कुछ आपको कहा है ये सब कुछ बिल्कुल सच है, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर इनकी बात ख़त्म हो गई। अब बादशाह ने दो अलग अलग काहिनों से बात जान ली कि भाई ये दो अनजान लोग थे, दोनों ने बता दिया कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है, और फिर इन दोनों ने ताबीर भी लगभग एक ही तरह की बता दी कि क्या होने वाला है। तो बादशाह को इन पर यकीन आ गया कि इनकी बात सच्ची होगी, ये गलत नहीं बोलेंगे। उसके बाद बादशाह ने फैसला लिया, वो सोचा कि मैं अभी यहाँ पे हबशियों के हाथों मार खाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले जो नस्ल है वो हबशियों के हाथों मार खाए। तो बादशाह ने फारस के बादशाह को ख़त लिखा। साबुर बिन खुरबस नाम का बादशाह था, उसे ख़त लिखा कि मुझे आपकी सल्तनत में आके पनाह दें, मैं आके वहाँ रहना चाहता हूँ। और फिर राबिया बिन नसर अपने अहल व अयाल को लेके इराक़ चले गया और इराक़ में जाकर बस गया। ये जो हबशी हैं ये यमन से काफ़ी नज़दीक हैं। यमन के बाद थोड़ा भी समुद्र इंसान अगर पार करे तो बगल में ही अफ्रीका आ जाता है, और अफ्रीका के अंदर वहाँ पे हबशी हैं, वहीं से हबशी आते थे यमन में, आना जाना लगा है, आज भी लगा है, नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। समुद्र का पानी पार किए तो यमन आ जाता है। तो ये एक किस्सा है। सोचिए, हजूर के आने के 200 साल पहले उन दो सती और शेख ने ये पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, और फिर एक पैगंबर आने वाला है। हजूर के आने के 200 साल पहले उन्होंने इतना कुछ बता दिया। ये बात सुनने में बहुत ही आदमी को नॉर्मल सी लगती है, अरे बता दिया, पर कभी गौर करें, कभी फिक्र करें, सोचिए। और फिर वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बहुत लंबी कहानी है। इन्होंने तो खाली मोटा मोटी बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ये सल्तनत आपकी चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। सही मानों में कैसे कैसे हुआ उन सब की तारीख मौजूद है, और तारीख को पढ़ गए इंसान को चौंक जाता है इंसान कि बस अल्लाह ताला को जो करना है वो करता है, अपने हिसाब से सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया है, कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो फिर इंशाअल्लाह आगे भी कभी इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ आगे, कैसे हुआ, और कैसे कैसे सल्तनतें बदली, और कैसे फिर हजूर आए, और कैसे क्या हो गया। तो यही वो किस्सा था।